So now we are going to discuss about some more criterias for congruence triangle. अब हम लोग यहाँ पे और criterias हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं पिछली क्लास में. अब कुछ और criterias हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पे हम लोग दो congruency के दो criterias डिस्कस करेंगे इन डिटेल. One criteria is SSS and second criteria is RHS. Right? So we are going to discuss these two criterias for congruency of triangles in detail. सर RHS का मतलब भी राइट हैंड साइड ही है. No, here the meaning of RHS is not right hand side. It is having the different meaning. This R here, R meaning is the meaning for R is right angle triangle. Right angle. R का मतलब है right angle 90 degree. And here H means hypotenuse. And S means side of the triangle. So let's discuss it in detail. Look at this written on the screen. Divyanshu, could you please read this written on the screen? Yes, sir. You have seen earlier in this chapter that equality of three angles of one triangle to three angles of the other is not sufficient for the congruence of the two triangles. You may wonder whether equality of three sides of one triangle to three sides of another triangle is enough for congruence of the two triangles. You have already verified in earlier classes that this is indeed true. ओके सो बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर दो ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, अगर इनके एंगल A 30 डिग्री है और ये एंगल P भी 30 डिग्री है, एंगल B सपोज इफ एंगल B is 50 डिग्री and this angle Q is also 50 degree, and suppose angle C is 100 degree and this angle R is 100 degree. So can we say that these two triangles are similar? Can we say that these two triangles are congruent? Yes, sir. क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इनके तीनों एंगल इक्वल हैं? So their sides may be different. Yes. No, we cannot say that this is not sufficient data. अगर तीनों एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल हैं तो it is not necessary that this is not the sufficient information that we can say that these two triangles are congruent. They may be congruent, may be AB similar to this or may not. So let us try to understand this with the help of the एक्टिविटी अभी देखेंगे हम लोग, उससे क्लियर होगा. आप इसको क्या कर सकते हैं, आप एक ट्रायंगल बनाइएगा 30 डिग्री और 50 डिग्री और 100 डिग्री का, और फिर आप एक दूसरा ट्रायंगल बनाइएगा. सो देयर साइड्स में बी डिफरेंट एंड एंगल में बी सेम. एंगल सेम होंगे और साइड्स डिफरेंट भी हो सकती हैं. लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल टू यू. एक एग्जांपल अगर मैं इसका दूं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एक सपोज मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे एंड the side of this equilateral triangle is 3 centimeter. Could you please tell me the angle? What are the angles for this triangle? If it is equilateral? All three are 60 degree. Yes, okay. All angles are 60 degree. Right. Now I am going to draw another triangle. This is the another triangle. Suppose it is PQR and its side is 10 centimeter each. Could you please tell me the angle of this triangle? 60 degree. Yes, absolutely right. All angles are equal to 60. एंगल 60 डिग्री है. क्या दोनों का शेप सेम है? तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए दो चीजें चेक करते हैं. वन इज शेप एंड सेकंड थिंग इज साइज. क्या दोनों ट्रायंगल्स का शेप सेम है? यस, दोनों ट्रायंगल्स ही हैं, शेप सेम है. क्या दोनों का साइज सेम है? साइज सेम नहीं है, साइज डिफरेंट है. एक छोटा है, एक बड़ा है. These are not congruent. Okay, so these triangles are not congruent. Why? Because their size is not same. साइज भी सेम होना चाहिए. क्या इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल इक्वल हैं? Yes, sir. तो अब हमने इससे ये सीखा
कि अगर सारे एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल एक ट्रायंगल के, तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। Yes, sir. Yes, sir. Triangle ABC is not congruent, or you can draw the triangles on your notebook and you can do that activities by yourself, then it will be more clear to you. So I have given the example of 60 degree, so you can take the different angles also and try to draw this by using the different angles. So you can draw with the same angles of the two triangle, the sides length is different, right? But एक यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर इनकी sides equal हैं, if the sides are equal, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, so is these triangles are congruent? Yes, anyone, yes or no? क्या ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हैं? Yes class, am I audible? Yes, sir, you are audible. अब क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं अगर तीनों साइड इक्वल हैं? Yes, sir. हाँ. बताइए। Yes, sir. क्या Yes, sir. अगर अब ये तीनों साइड इक्वल हैं, क्या अभी मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं? Yes, sir. यस, 100% Yes, sir. कॉन्फिडेंस के साथ अब हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इट इज रिटन हियर, इफ यू लुक एट दिस यू मे वंडर वेदर द इक्वालिटी ऑफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल इज एनफ। दिस इज एनफ। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो एनफ कंडीशन है, एनफ डाटा है, हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेटली दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो दैट कंडीशन इज नॉट sufficient. I hope this thing is clear to you. And this thing we have already verified in the previous classes, right? So now, look at this activity here written on the screen. Anju, am I audible to you? Yes, sir. Could you please read this activity written on the screen? To be sure, construct two triangles with side 4 centimeter, 3.5 centimeter, and 4.5 centimeter. See figure 7.35. Cut them out and place them on each other. What do you observe? They cover each other completely. If the equal sides are placed on each other, so the triangles are congruent. ओके एंड ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल कट करो जिसकी साइड ऑफ 4, 3.5 और 4.5। एक सेम साइड का दूसरा ट्रायंगल कट करो लाइक दिस। सपोज एक ट्रायंगल बनाओ इस तरह से, सपोज दिस इज वन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मैंने बनाया, राइट? ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। इसकी जो साइड्स हैं वो एक 3 है, एक 0.5 है, एक 4 है, एक 4.5 है। आप स्केल से मेजर करके बना सकते हैं। अब मैंने एक सेम साइड का दूसरा ट्रायंगल मैं फॉर्म कर रहा हूं यहाँ पे। सो सपोज मैंने एक दूसरा ट्रायंगल बनाया। अब मुझे पता करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसके ऊपर इसको प्लेस करना चाहिए। अब जब मैंने इन दोनों को ऊपर प्लेस किया तो आप देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली आ गए हैं। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? Yes, sir, we can say so. यस वी कैन से। अगर वो एक Yes, sir. दूसरे को कवर अप कर लेते हैं, और ये कवर अप कब करेंगे? जब इक्वल साइड्स होंगी। तो यही हमारे इसमें एक्टिविटी में बता रहे हैं। इस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करके आप दे सकते हैं। सो इस एक्टिविटी से हम लोग एक रिजल्ट पे कंक्लूड हुए हैं। सो नाउ लुक एट दिस थ्योरम 7.4। दिस थ्योरम सेज दैट एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है? अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंड दैट रूल इज कॉल्ड एज एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल।
if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. These theorems can be proved using suitable constructions. You have already seen that Sass congruence rule. The pair of equal angles has to be included angle between the pair of corresponding equal sides. तो जो एंगल होता था इक्वल साइड्स के बीच में होना चाहिए, ये एसएस में हम लोगों ने देखा है. इफ दिस इज नॉट सो, द टू ट्रायंगल्स में नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. अगर ऐसा नहीं है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है. राइट नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी हियर. प्रेरणा Kasana, am I audible to you? Yes, sir. Prerna, could you please read this activity written here? Yes, sir. Perform this activity. Construct two right angle triangles with hypotenuse equal to 5 centimeter and one side equal to 4 centimeter each. Cut them and place one triangle over the other with equal side on each other. Turn the triangles if necessary. What do you observe? The two triangles cover each other completely, and so they are complete. Repeat this activity with other pairs of right triangles. What do you observe? You will find that two right triangles are congruent if one pair of sides and hypotenuse are equal. You have verified this in earlier classes. Now, note that the right angle is not the included angle in this case. So you are the fully congruence rule. ओके सो बेसिकली ये इस एक्टिविटी में क्या करना है, इसमें हम लोग सेकंड कॉन्ग्रुएंस रूल की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम होता है RHS. एक राइट एंगल, तो हमें दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं इस एक्टिविटी में. आपको अपनी नोटबुक पे एक ट्रायंगल बनाइएगा 90 डिग्री के दोनों, ठीक है. एक ट्रायंगल की इसकी साइड 4 है तो इसकी ये वाली साइड 4 लेना और हाइपोटेनियस इक्वल लेना है. क्या करना है, एक राइट एंगल लेना है, एक हाइपोटेनियस इक्वल लेना है और एक साइड इक्वल लेनी है दोनों ट्रायंगल्स की. अब आप सपोज ये दोनों ट्रायंगल आ गई है, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका हाइपोटेनियस इक्वल लिया मैंने और इसकी एक नीचे वाली साइड, ये वाली साइड का नहीं पता हमें, ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री. ठीक इसी तरह से एक दूसरा ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस. इसमें एंगल 90 लिया, एक साइड इक्वल ली नीचे वाली और एक हाइपोटेनियस इसका इन दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल है. अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर पुट करेंगे तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर अप कर रहे हैं. ऐसा आप डिफरेंट साइड्स लेके आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. उनको कट करके एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना. कब, जो हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए, एक साइड इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, यू ऑब्जर्व दैट यू विल फाइंड दैट टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. कब, अगर एक साइड्स का पेयर इक्वल है और एक हाइपोटेनियस इक्वल है. राइट, so you have verified in this earlier classes. Note that the right angle is not included angle in this case. अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये राइट एंगल इन दोनों के बीच में ही आता हो. देख रहे हैं आप, ये S है, ये S है, ये एंगल है, तो ये SSA, तो A मतलब R होना चाहिए राइट एंगल, ठीक है. तो राइट एंगल इज नॉट इंक्लूडेड. So we arrive after doing this after discussing this activity, we arrived to a congruence rule. एक congruence rule हमारे सामने आ गया है अब. So what is that congruence rule? इसको बोलते हैं RHS congruence rule. R मतलब है यहाँ पे राइट एंगल, H का मतलब है हाइपोटेन्यूस और S का मतलब है साइड. RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है यहाँ पे, ये राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड. क्या कहता है ये यही कहता है, देखो, इफ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent. Right, I hope this congruence rule is clear to you. What is RHS congruence rule? Any question? साइड कौन सी साइड ये डिफाइन नहीं है. कौन सी साइड है, आप कोई सी भी साइड आप ले सकते हैं. इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं बता देता हूं आपको. सपोज एक ट्रायंगल यहाँ पे है, सर ये SAS जैसा हो गया ना. ये SAS जैसा हो गया है, लेकिन SAS की रेस्ट्रिक्शंस को इसने ओवरकम कर लिया है. SAS की रेस्ट्रिक्शंस क्या थी, जो एंगल था वो इंक्लूड होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है. तो इसमें भी दो साइड होती है, देखो ये हाइपोटेनियस तो इक्वल होना चाहिए. अब साइड कोई सी भी साइड किसी के इक्वल हो सकती है, साइड्स की रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो ये वाली साइड इसके इक्वल भी हो सकती है
और अगर ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है तो ये वाली साइड भी हो सकती है, ये वाली साइड भी इसके इक्वल हो सकती है। ये ऐसे ऐसी हो गया है, ऐसे ऐसी हो गया है। सर यस सर, पर अगर नीचे वाली साइड दोनों से डिफर करे तो? अगर एक साइड इक्वल ही लेनी है हमें, ये कंडीशन है इसमें, अगर ये साइड इसके इक्वल आ रही है या ये वाली साइड इसके इक्वल भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली के इक्वल ही आए, ठीक है, ये इसके इक्वल भी आ सकती है। दिस साइड में मस्ट बी इक्वल टू, मे बी इक्वल टू दिस साइड ऑल्सो। तो बेसिकली एक साइड इक्वल होनी चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और एक एंगल 90। तो इसने एसएएस को ओवरकम किया। तो बेसिकली एसएएस की लिमिटेशन क्या थी, एसएएस में एस ए नहीं होता, एस ए नहीं होता था, साइड साइड एंगल नहीं होता था, या एंगल साइड साइड नहीं होता था, ठीक है, जो एंगल है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। इसने इसकी ओवरकम कर लिया इसकी रेस्ट्रिक्शन को। कैसे, देखो इसमें ये साइड आई, फिर साइड आई और फिर एंगल आया, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एस ए की तरह, एस एस ए की तरह काम कर रहा है, सॉरी एस ए नहीं, एस एस ए की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, एंगल आया, फिर साइड आई और फिर साइड आई, तो ये एंगल साइड साइड की तरह काम कर रहा है। बट कंडीशन ये है, ये दोनों पॉसिबल है, साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड। कंडीशन ये है कि ये एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है तो हम उस प्रॉपर्टी को एसएसए या एएसएस नहीं बोलेंगे। दैट कॉन्ग्रुएंस रूल इज कॉल्ड एज आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। I hope you understood the things what I want to explain it to you here. Yes, sir. Okay, by connecting this essay. So this is all about this concept. So now in the next class, we will move to the exercise questions. Then these theorems will be completely clear in your mind. So that's all for today. Thank you all for joining. Rest of the thing in the next class. Thank you, sir.